Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. MapReduce, there are two, as the term itself says, there are two words actually in this one word, that is map and reduce. So these are the two main tasks in the MapReduce process. It's a mainly data processing component in the Hadoop. Okay. So the some programming model is there for processing large amount of data. So if you want to create map and reduce task, then you require to use programming language like Java, and you require Eclipse environment or Notepad, Notepad or NetBeans, whatever you want to use IDE. That IDE you required to create that task. Okay, so it's a kind of a normal Java program, you can say. Okay, but that program contains the task of data processing and distribute that particular task across the node. So बाद में जब आप इसको submit करते हैं, जब ये task को, तो ये जो task submit होता है, it will divided into jobs and task. Okay, तो जब जॉब सबमिट होती है तो इसका सब टास्क बनता है और उसके हिसाब से वो नोड को असाइन होता है. वॉट एवर द नोड्स आर देयर फॉर द मैप एंड वॉट एवर द नोड्स आर देयर फॉर द रिड्यूस, दैट विल बी decided by the Hadoop cluster. Okay, so now the two main task or phase in the Hadoop MapReduce processing is map and reduce. What map will do, so it will convert your typical data into your key value pair data. Okay, so it will take the data, then it will just extract the data. Okay, and जो भी data है आपका, suppose you are having data, let's say 10,000 rows. Okay, so it will extract data row by row and convert the data in the form of key value pair. ठीक है, तो मैप का काम क्या है, यहाँ पे सिर्फ की और वैल्यू में वो डेटा को कन्वर्ट कर देना बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरलाइन. ओके, सो व्हाट एवर द टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज देयर, दैट वे इट विल कन्वर्ट द की वैल्यू पेयर. ओके, एंड देन आफ्टर there are so many tasks in between the map and reduce. The most important task between the map and reduce is called shuffle and sort. This is what the task, small task between the map and reduce, which will be handled by the Hadoop itself. Okay, so there is no program you require to write for this. It is an automated process in the Hadoop cluster. And then after, whatever the data we assign, that will go, whatever the data in output is there from map, it will go submitted to reduce. And reduce kya karta hai, it will integrate the data couple into a smaller set of tuple. Okay, so it will try to aggregate the data, or you can say it will convert the data in the small data set. ओके, तो उसको कंबाइन करने का काम कौन कर रहा है, रिड्यूस. जैसे द टर्म इटसेल्फ सेज दिस, कि उसको रिड्यूस करने का जो काम है वो कौन कर रहा है यहाँ पे, रिड्यूसर. सो द बेसिक यूनिट ऑफ दिस इज मैप रिड्यूस इज की वैल्यू पेयर. All the structured, unstructured, whatever data you give as input, that data will be converted into map reduce format. That is key value pair. ठीक है, हर एक डेटा का की वैल्यू पेयर होगा बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ओके, एज द नेम सजेस्ट, मैप रिड्यूस मॉडल कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट यूनिट, मैप एंड रिड्यूस. ठीक है, तो यहाँ पे पहला मैप, रिड्यूस और सफल, और उसके बाद रिड्यूस स्टेप है. ठीक है, सबसे पहले हमने की वैल्यू में कन्वर्ट किया, देन आफ्टर सफल इट इज ऑटोमेटिकली हैंडल बाय मैप रिड्यूस. बट यहाँ पे शफल में क्या होता है, वो जो है वो कीज को सेपरेट कर देता है और उसके साथ जितनी वैल्यू है उसका लिस्ट बनाता है. दैट इज व्हाट द टास्क ऑफ सफल. और वो जो की में कन्वर्ट किया ये ऑटोमेटिक होता है. ठीक है, उसको और भी डिटेल में देखेंगे तो समझेगा आपको. और रिड्यूस टास्क में क्या होता है, सो ऑल द वैल्यूज एसोसिएटेड विद द सिंगल की दैट विल बी एग्रीगेटेड. ओके, एंड इट विल रिड्यूस द डेटा drastically. ठीक है, सो ऑल द मैप नीड्स टू फिनिश बिफोर द रिड्यूस स्टेज कैन बिगिन. क्योंकि अगर आपका मैपिंग कंप्लीट नहीं होगा तो रिड्यूसर जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज जितने मैपर्स है वो सभी का यूज रिड्यूसर करेगा एट ए टाइम. ठीक है, इसके लिए सारे पहले जितने भी टास्क है वो पहले मैपर के कंप्लीट होंगे, देन आफ्टर सफल के जितने टास्क है वो कंप्लीट होंगे, एंड देन आफ्टर रिड्यूसर विल स्टार्ट दैट वर्क. ठीक है, सो उस हिसाब से पूरा होता है. एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि हम कैसे रनिंग एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा. सपोज वी हैव 3 sentences.
द क्विक ब्राउन फॉक्स, द फॉक्स एट द माउस एंड हाउ नाउ ब्राउन काउ। ये जो है ये 3 सेंटेंसेस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वर्ड काउंट। प्रॉब्लम कौन सा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, वर्ड काउंट ऑफ द गिवन फाइल। नाउ यू थिंक अबाउट द फाइल विच इज हैविंग अ वेरी बिग डेटा, लेट्स से डेटा जो है वो पूरा पेटाबाइट में डेटा है, ठीक है, उसका वर्ड काउंट करना है। कैसे होगा वर्ड काउंट, तो उसके लिए मैप रिड्यूस यूज होगा, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड इन ऑल द सेंटेंस and imagine that each of these sentences acquire huge memory and hence are allocated to different data nodes. Okay, so these are all in different data nodes. Okay, so सबसे पहले एग्जीक्यूशन में क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, it will go for the mapper phase and mapper phase will convert the data into key value pair. So now to start with the data, what it will do, it will extract this data first, फर्स्ट लाइन फर्स्ट सेंटेंस को वो एक्सट्रैक्ट करेगा और उसके बाद हर जो वर्ड है उसके साथ एक नंबर एसोसिएट होगा, दैट इज व्हाट द की वैल्यू पेयर। द दी इज कमिंग फॉर द वन टाइम, क्विक coming for one time, brown for one time and fox for one time. In this sentence there are 4 words and all the words attached with the value and that is 111. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, हर एक वर्ड को एक नंबर असाइन होगा, ठीक है। ये आपका कौन सा टास्क है, पहला वर्ड, ठीक है, मैप टास्क। सेम वे द वर्ड एट द माउस, ये आपका सेकेंड रो है और सेकेंड रो भी वैसे ही एक्सट्रैक्ट होगा और हर वर्ड के लिए एक एक क्या मिलेगा, उसको वैल्यू दी कॉमा 1, फॉक्स कॉमा 1, 8,1, दी कॉमा 1 एंड माउस कॉमा 1, ऐसे करके एक की वैल्यू पेयर क्रिएट होगा। द सेम फॉर द थर्ड लाइन। दिस इज व्हाट द टास्क ऑफ मैप। यहां पे मैप का टास्क खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनपुट मिला तो इसने 1 1 1 1 कैलकुलेट किया, ये 1 ये 1 ये भी 1 है और ये भी 1 है, इसके लिए ये और ये सब 1 1 है और यहाँ पे ये और ये 1 1 है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज शफल एंड शॉर्ट। ओके, that is the intermediate task done automatically by the Hadoop cluster, ठीक है। तो उसके होने के बाद वो डेटा किसको मिलता है, रिड्यूसर को मिलता है, ठीक है। अब रिड्यूसर में यही यहाँ पे क्यों गया और यही यहाँ पे क्यों गया, तो that will be decided by this shuffle and sort. ओके, तो ये shuffle and sort क्या करता है, the same type of data it will send to the same reducer. क्लियर। सो यहाँ पे देखो ये डेटा यहाँ पे गया, उसके साथ कौन सा डेटा गया है, ये वाला डेटा। सो यू कैन थिंक ऑल द दी वर्ड्स गोइंग इन द सेम रिड्यूसर, ऑल द फॉक्स वर्ड go to the same reducer, all the brown words go to the same reducer. Now this is done by the shuffle and sort. And then after reducer का टास्क क्या है, तो जितनी बार इसमें फॉक्स आता है उतनी बार वो फॉक्स का एग्रीगेशन, ठीक है, ब्राउन का एग्रीगेशन, हाउ का एग्रीगेशन, नाउ का एग्रीगेशन, जितने वर्ड्स आए उन सबका एग्रीगेशन। सो हियर यू आर गेटिंग द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अकरेंस ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ओके, एक और एग्जांपल लेंगे जिससे बहुत और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। सपोज माय इनपुट इज लाइक दिस, डियर बेयर रिवर, कार रिवर एंड डियर कार बेयर, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो 3 वर्ड्स 3 रो है, वो रो को सबसे पहले क्या किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया स्प्लिट से। सो नाउ स्प्लिटिंग हुआ है यहाँ पे, तो देर आर 3 रो डिवाइडेड in this three input is given to the mapping. Now मैपिंग का काम क्या है, की वैल्यू पे जितने वर्ड्स है उतना की बन जाएगा और उसके साथ एक वैल्यू अटैच करना है। क्यों अटैच करना है, बिकॉज माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज वर्ड काउंट, दैट्स व्हाई। इफ माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज समथिंग एल्स लाइक मैट्रिक मैनिपुलेशन, तो ये चीज अलग होगी, उसका लिस्ट और उसका की वैल्यू पर डिफरेंट होगा, ठीक है, उसका तरीका डिफरेंट होगा। ओके, दैट ऑल्सो वी विल सी। ओके, सो यहाँ पे
आफ्टर स्प्लिटिंग हम ये 3 रो देख रहे हैं. नाउ ईच एंड एवरी रो is the input for the mapping phase, and mapping phase is doing nothing but getting the word and attaching values with that word. और वो occurrence कितना आ रहा है यहाँ पे, तो occurrence 111, कार river 111, deer car bear 111. ठीक है. Then after shuffle will generate the key. ठीक है. तो यहाँ पे की है bear. अब बैट जितनी बार भी आ रहा है वो सारा यहाँ पे ये की फाइनल की है, उसके साथ वैल्यू का लिस्ट बनेगा. समझ आ रहा है सबको? वैल्यू का लिस्ट बनता जा रहा है. जितनी बार वो आता है उसमें कॉमा 111 होता जाएगा. सो नाउ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज कमिंग फॉर 2 times 1 and 2. तो ये दोनों यहाँ पे इनपुट एज ए इनपुट आएगा और 1,1. कार 1 2 3 times, तो 1,1,1. My key is common. Now I am making the list of whatever the occurrence are there. Okay, so value में मैं list create कर रही हूँ अभी. ठीक है. So यहाँ पे एक पूरा array generate हो रहा है. Then deer, तो deer how many times? 2 times, तो ये यहाँ पे generate हुआ. ठीक है. Then river 2 times, तो यहाँ पे generate हुआ. Now after that the reducer will come in the picture. Now the important part is what? Already reducer is decided how many reducer are there in the process. Okay, based on that shuffle key will be decided कि कितनी कैसे की रखनी है यहाँ. ठीक है. समझ आया? तो यहाँ पे 4 रिड्यूसर है हमारे पास, तो यहाँ पे 4 शफल भी है. ठीक है. शफल आफ्टर शफल हमने यहाँ पे 4 की बनाई. ठीक है. तो अभी बेयर कितना हुआ? 2. इसका एग्रीगेशन हो गया 3, इसका एग्रीगेशन हो गया 2, इसका एग्रीगेशन हो गया 2. दिस इज द फाइनल रिजल्ट with key value pair. Map reduce job execution, we have already learned this in the previous lecture, so we'll start with the map reduce code. Okay, now in this map reduce code we require to write only 2 main code, that is mapper task and the reducer task. And whatever the task is generalized task, ओके जनरलाइज जो हमें उसके ऊपर काम करना है उसके ऊपर हम अभी बात करेंगे. सो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इनपुट डेटा. ओके, व्हाटएवर द इनपुट फॉर्मेट इज देयर दैट विल बी गिवन टू द मैपर. ओके, सो द डिफॉल्ट फंक्शन ऑफ दिस मैपर क्लास इज मैप फंक्शन, is having this parameters. The parameters are long writable key, this is the offset value, comma text. Text is your actual value and context is your written buffer reader stream to write the data. Okay, so now what is this offset, what is this value? Okay, so now suppose this is the file data, ये फाइल का डेटा है सपोज. ठीक है, ये आपका क्या है? फाइल का डेटा है. अब इस फाइल के डेटा में कितनी लाइन है? सपोज ये 3 लाइन का डेटा है. ठीक है, अब 3 लाइन का अगर डेटा है तो सबसे पहले ऑफसेट कौन सा होगा? 0 ऑफसेट पे डेटा होगा. सपोज इन योर txt file, these are the 3 lines in the txt file. So in first time in the long writable means your offset of the given data, input data means first time आपका offset कहाँ पे होगा? 0 से पहले होगा. मतलब यहाँ पे आपका offset है 0 प्लेस पे. और उसके बाद दूसरा जो वैल्यू है टेक्स्ट वैल्यू, तो टेक्स्ट वैल्यू क्या होगा आपका? फर्स्ट से लेके एंड तक का डेटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ द दिस टेक्स्ट वेरिएबल. ठीक है, जो वैल्यू वेरिएबल है उसके अंदर क्या आएगा? एक्चुअल डेटा. ठीक है, सेकेंड टाइम ऑफसेट क्या होगा आपका? तो सेकेंड टाइम का ऑफसेट ये है, दी के पहले वाला. ठीक है, तो ये इसका जो भी आपका बाइट है उसके इतने बाइट के बाद ये टोटल बाइट जो आपका स्पेस है या आपका कॉमा है या आपका कैरेज रिटर्न, एंटर इज आल्सो वन टाइप ऑफ कैरेक्टर, राइट? सो वो सारे कैरेक्टर को कैलकुलेट करके उसके बाद कौन से बाइट पे, सपोज 100th बाइट पे ये टी स्टार्ट हो रहा है, तो दैट इज द ऑफसेट. कहाँ से डेटा पढ़ना है? एंड तक, जब तक कैरेज रिटर्न नहीं आता. तो वो सारा जो है वो सेकेंड टाइम वापस मैपर में जाएगा.
फिर थर्ड के लिए यहाँ पे वापस ऑफसेट आएगा, थर्ड के लिए यहाँ पे जाएगा. तो दैट वे वन बाय वन that map function is getting your input line wise. Clear? Okay, and then after we will perform functions on the data. Clear? Now for the output, हमको आउटपुट किस कौन से फॉर्म में मिलेगा? तो आउटपुट आपको मिलेगा की और वैल्यू के फॉर्म में मिलेगा ऑलवेज. ठीक है, की वैल्यू. नाउ दैट की वैल्यू कैन बी इन द एनी फॉर्मेट. इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्लोट, इट कैन बी you can say text format. Okay, so whatever the required as per our problem statement, okay, उस हिसाब से यहाँ पे होगा. ठीक है, तो वो उस हिसाब से आपका आउटपुट होगा. तो अभी फिलहाल हमें यही ध्यान रखना है कि आपका इनपुट क्या होगा और आपका आउटपुट क्या होगा. Another one is context dot write. Now context, as I told you, it will give you the buffer stream to write the data, so that later on they can read the data from this. And if you want in reader, if you are in reducer, if you are writing this command context dot write, it will write the data in the output format, whatever the format you have decided and given in the driver class. Okay, so that is the कंडीशन कि व्हाट जो अर्लियर डिसाइड हुआ है उसी हिसाब से उसी फॉर्मेट में वो पूरा काम चलेगा. ठीक है, तो वर्ड काउंट कोड में हमने क्या किया था कि यहाँ पे वैल्यू डॉट स्ट्रिंग मीन्स ईच एंड एवरी लाइन विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग वैल्यू, एंड देन उसका हमने टोकन क्रिएट किया. मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, whatever the lines are there, we are converting into words, and then we are writing the words as a key part, and then after we are actually giving the actual value of the value part. तो value part में हम क्या दे रहे हैं, वन इंसर्ट कर रहे हैं, लिटरली कर रहे हैं, वहां पे वन इंसर्ट कर रहे हैं. ठीक है, और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईच वर्ड इज हैविंग वन अकरेंस. एज पर अवर एल्गोरिथम वी रिक्वायर टू डू दिस. ओके, another one is reducer task, which is again very very important. but reducer task जो होगा उसके लिए क्या होगा, input format भी text की वैल्यू होगा और output format भी की वैल्यू होगा. क्यों? क्योंकि whatever the output of the mapper will be the input for the reducer, right? so यहाँ पे reducer का output क्या है, key value. then again here we will get the key value. Clear? and then after context to write the final result in the output format, whatever the format decided by the system, or whatever the format given by you in the driver class. Okay, and what we are doing, we are just adding this list value. ये list value को हम add करते जा रहे हैं, so that we will get the occurrence, total occurrence of the word. Clear? now this is your Java part. the whole one is Java part. यहाँ पे logic लिखना है आपको. जिस हिसाब से मैप बनाना है उसके लिए मैप का लॉजिक, जिस हिसाब से रिड्यूसर बनाना है उस हिसाब से रिड्यूसर का लॉजिक. क्लियर? ऑल द टाइम फॉर ऑल द की वैल्यू पेयर आपका ये सम अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा और फ्रेश शुरू करेंगे हर एक नई वैल्यू के लिए. ठीक है, दैट्स वाई सम इज इक्वल टू 0. फिर सम करके हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसको अगेन आउटपुट में राइट कर रहे हैं. आउटपुट स्ट्रीम जो आपने डिसाइड किया है ड्राइवर के अंदर, ड्राइवर क्लास क्या है वो भी हम देखेंगे, कैसे पूरा पैरामीटर सेट होता है वो भी देखते हैं. बट दिस इज व्हाट द जनरलाइज मैपर एंड रिड्यूसर. ओके, नाउ व्हाट टाइप ऑफ इनपुट फॉर्मेट यू रिक्वायर टू गिव. नाउ ये जो थे आपका, ये आपका इनपुट फॉर्मेट ले रहा है यहाँ पे, ये ऑफसेट एंड वैल्यू. ठीक है, ऑफसेट एंड वैल्यू ये आपका इनपुट ले रहे हैं. तो ये इनपुट कौन कौन से फॉर्मेट में हो सकता है. so there are so many formats for the input. okay, it can be text input format, it can be key value input format, it can be sequential file input format or normal file input format. today we will see this file input format. okay, so यहाँ पे आप instead of giving any text value, you will just input one file as a input value. ठीक है, तो वो फाइल को रीड करेगा. क्लियर? so text input format क्या है, तो default it will reads the lines of the text file. byte offset of the line is the key, and value क्या होगा, line content will be the value. ठीक है, तो ये हो जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, text input format में वो text file को read कर रहे हैं. this is specific text file, this can be any file.
ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके, और यहाँ पे आप डायरेक्टरी भी एज ए इनपुट दे सकते हो। डायरेक्टरी दे दिया तो वहां पे जो भी फाइल होगी, ऑफ कोर्स उसमें वन ही फाइल होनी चाहिए रीड करने के लिए, तो जो फाइल होगी वो उससे स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाथ भी दे सकते हैं पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने के लिए। नाउ अनदर वन इज की वैल्यू इनपुट फॉर्मेट। सो इट विल पार्स लाइन इन की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, तो जो फर्स्ट टैब होगा वो आपका की हो जाएगा, सेकेंड टैब जो होगा वो आपका वैल्यू हो जाएगा। सो इट मस्ट बी इन द फॉर्मेट ऑफ tab or comma or something like that, so that they can bifurcate the value key and value both। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिसाब से होगा। सिक्वेंशियल फाइल इनपुट फॉर्मेट क्या होता है? दिस इज Hadoop specific high performance binary format. Data is there in the binary format and user defined key and user defined value will be there the key value। Clear? So this is what the input format types। Okay, आउटपुट फॉर्मेट टाइप्स में क्या क्या है? तो आउटपुट फॉर्मेट में है अगेन सेम टेक्स्ट आउटपुट, सिक्वेंशियल फाइल आउटपुट, नल आउटपुट और फाइल आउटपुट। नल आउटपुट मींस जिसमें कोई आउटपुट वैल्यूज नहीं देना है, बिकॉज देयर इज नो आउटपुट फ्रॉम द गिवन प्रोग्राम। ओके, सिक्वेंशियल फाइल आउटपुट फॉर्मेट में क्या आएगा? तो अगेन वही बाइनरी फाइल्स, टेक्स्ट आउटपुट में टेक्स्ट में डेटा की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में होगा, और फाइल आउटपुट में फाइल जनरेट होगी। सो इंटरमीडिएट ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, इनपुट फॉर्मेट हुआ, स्प्लिट हुआ, रिकॉर्ड रीडर हुआ। रिकॉर्ड रीडर जो है वो एक एक ब्लॉक के लिए है, तो उतने मैप टास्क जनरेट होते हैं। देन पार्टीशनर, शॉर्ट, रिड्यूस। नाउ is combiner is required in between or not? Do we need to write code for the combiner? No. So in our previous lecture we have seen what is combiner and all, and in that combiner we have seen that there is no guarantee that the combiner part will be executed by the HDFS. Why? Because it is the task of Hadoop cluster। ठीक है, अगर आपको कंबाइनर का कोड लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट इट इज अ टास्क ऑफ हडूप क्लस्टर वेदर द क्लस्टर विल रन दैट पर्टिकुलर पार्ट और नॉट। क्लियर? यहाँ पे ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन हम नहीं दे रहे हैं कि अच्छा हमने मेन में पहले मैपर को रन किया, देन रिड्यूसर को रन किया, ऐसा कुछ नहीं, और सारी चीजें ऑटोमेटिक होगी। ठीक है, सो यू राइट कंबाइनर कोड ऑल्सो, बट दैट कंबाइनर विल बी रन बाय हडूप क्लस्टर और मे नॉट रन। Okay, that is based on that load on the cluster। ठीक है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। सो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड टू डू। अब एग्जैक्टली हम प्रैक्टिकल में क्या करने वाले हैं? सो प्रैक्टिकल में ये पूरा तो हमारा किया हुआ मिलेगा आपको, ये पार्ट आपको करना है। So as in when you write all the Java files and you submit your program, that program will be submitted to name node। And then after this name node will submit and create job tracker। Job tracker will create task tracker। task tracker कहाँ पे है? ये देखो, जितने नोड है उतने task tracker है। अब मुझे बताइए यहाँ पे, suppose I am having 6 split for my input data, how many mapper you required to system required to generate? 6 स्प्लिट का मतलब समझ में आया सबको? सपोज मेरे डेटा का ब्लॉक साइज जो है वो कितना है? ब्लॉक साइज है हमारा 128। तो डेटा इतना बड़ा है कि वो पूरी एक ही फाइल है, पर वो कितने ब्लॉक में डिवाइड हुई है? 6 नहीं, यहाँ पे 6 है, 5 नहीं है, इसलिए 6 है टोटल। ठीक है, अगर वो 6 में डिवाइड हुई है, तो मेनी मैपर टास्क रिक्वायर्ड? पॉसिबल दैट नोड इज हैविंग लेट्स से 2 ब्लॉक्स। हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि डेटा नोड आपके पास सपोज 4 ही है, लेट्स से सपोज 4 ही है। ठीक है, तो अब क्या होगा? रेप्लिकेशन भी होगा, सब कुछ होगा, और हो सकता है कि एक ही डेटा नोड के ऊपर आपके 2 स्प्लिट हो। पॉसिबल है, 2 ब्लॉक हो सकते हैं। डेटा नोड्स आर रैग्स। ओके, they can store so many blocks at a time, right, with the replica। so यहाँ पे क्या हो रहा है कि suppose one data node is having let's say 2 blocks। so in one data node itself 2 task trackers can run। clear हुआ सबको? ये
हाँ, बेस्ड ऑन डेटा, जहां पे ब्लॉक मिलेगा वहां पे डेटा शुरू हो जाएगा. सो व्हाट हैपन, एज इन व्हेन यू सबमिट, दिस नेम नोड विल कम इन द पिक्चर which is having the metadata. Metadata of what? All this blogs, whatever the blogs are there, where these blogs stored in data node, their IP address are there in the name node as a metadata. So it will collect all the IP address and start task tracker to that IP. Clear everyone? Okay, so यहाँ पे IP समझ में आ गया और task tracker शुरू हो गया. Then they will run that map function, and then after shuffle and sort, then what happened? Partitioner will come in the picture as in when you are having more than one reducer. Generally, generally in the system only one reducer is there, but अगर system बहुत बड़ा है और अगर फाइल बहुत बड़ा है, ठीक है, फाइल का जो इनपुट फाइल है वो बहुत ही बड़ी फाइल है जिसको प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली मोर देन वन रिड्यूसर विल बी कम इन द पिक्चर. नाउ हु विल डिसाइड ऑल दिस थिंग्स? हु इज द रिसोर्स मैनेजर ओवर हियर? हु विल डिसाइड ऑल दिस के कहाँ पे मैपर होगा एग्जैक्टली, फिर कहाँ पे रिड्यूसर शुरू होगा, कितने रिड्यूसर होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है? वी हैव लर्न ऑन यान. YARN is nothing but a resource management service, and the YARN is having one particular component called application manager, which will track the resources. Okay, resources of memory, resources of processing power. उसके पास वो सारा डेटा रहता है कि कहाँ पे जो कौन से नोड पे अभी डेटा नोड फ्री है, ठीक है, कहाँ पे ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल है, कहाँ पे ज्यादा मेमोरी अवेलेबल है, कहाँ पे ज्यादा प्रोसेसिंग मिल सकता है, ये सारी डिटेल किसके पास होगी? यान सर्विस के अंदर जो एप्लीकेशन रिसोर्स मैनेजर पूरा हमने देखा था, उसमें एक कंपोनेंट था एप्लीकेशन मैनेजर. उसका ये काम है कि रिड्यूसर जो है वो मल्टीपल रिड्यूसर कहाँ पे होंगे. एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द नेम नोड एवरी टाइम. सपोज यहाँ पे 7 टास्क ट्रैकर चालू है, दे आर सेंडिंग हार्टबीट मैसेजेस टू नेम नोड. एज एंड व्हेन एनी डेटा नोड गोज डाउन, इसका मतलब वो टास्क ट्रैकर का काम तो बंद हो गया. सो इमीडिएटली दिस नेम नोड विल जनरेट अनदर टास्क ट्रैकर विथ अनदर डेटा नोड. क्लियर? फ्रेश टास्क ट्रैकर वो शुरू कर देगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेम नोड हियर. ठीक है, और उसके बाद कितने रिड्यूसर करने हैं वो सारा हो जाने के बाद एक पार्टीशनर विल कम इन द पिक्चर अगर हमारे पास मोर देन वन रिड्यूसर है. एंड देन आफ्टर वॉट एवर द कीज आर देयर, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली विद द रिड्यूसर. सपोज यहाँ पे इवनली क्यों नहीं हो रहा है हमारे पास? क्योंकि उसका पहला कंडीशन ये है कि जितनी सेम टाइप की है वो एक ही रिड्यूसर में जाएगी. दैट इज व्हाट द ग्रुपिंग. शफलिंग एंड शॉर्टिंग में क्या होता है? ग्रुपिंग एंड शॉर्टिंग होता है. ठीक है, तो वो जो चीज है वो यहाँ पे सबसे पहले करना है कि जो भी सेम टाइप की है वो एक ही रिड्यूसर में जाना है. और दूसरा काम ये है कि इवनली नोड को लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, एंड देन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, आफ्टर वर्किंग ऑफ द रिड्यूसर, दैट्स रिड्यूसर विल जनरेट डिफरेंट फाइल्स. ये रिड्यूसर की अलग से एक फाइल बनेगी, ये रिड्यूसर की एक अलग से आउटपुट फाइल बनेगी, और रिड्यूसर की अलग से ये आउटपुट फाइल बनेगी. इफ यू आर हैविंग if you are having 3 reducer, you will get 3 different output file जो आपको खोल के देखना है कि वहां पे वर्ड काउंट का जो है वो हुआ है कि नहीं, वर्ड काउंट प्रॉपरली हुआ है कि नहीं. ठीक है, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग ओनली वन रिड्यूसर, in that case what happened, you will get part-r file, only one file. There is no 0 1 2. Clear? एक बार हम प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आएगा आपको. ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे समझ में आया करना क्या है. इनपुट फैच डेटा प्रोसेस अपने आप होगी, मर्ज होगी और आपको आउटपुट मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट मैप रिड्यूस इज. सो नाउ वी विल सी दिस प्रोग्राम thoroughly. ठीक है, now here we will use a Hadoop library and a Hadoop MapReduce library for the common whatever the functionality we want to do for that. Okay, अब इसके अंदर हमारे पास 3 फाइलें होगी. फर्स्ट इज word driver.java फाइल, जहाँ पे सारे सेटिंग करने हैं आपको.
तो सेटिंग कौन कौन से करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो, वहाँ यहाँ पे क्या क्या सेटिंग की है हमने. सबसे पहले वी रिक्वायर टू क्रिएट अ जॉब. After creating a job, we will give a jar file. So in this jar file, we will set the main class. तो main class हमारा कौन सा है, यही हमारा main class है. ठीक है, तो यहाँ पे मेन क्लास का नाम आएगा जार फाइल में. ठीक है, जो भी जिस नाम से आप जार फाइल बनाओ, जो जो आपका मेन क्लास होगा. अच्छा, मैंने ये नाम एक्चुअली यहाँ पे चेंज किया था, पर यहाँ पे चेंज नहीं किया. ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये ड्राइवर क्लास है. ठीक है, ठीक है. अब इसके अंदर आपने जॉब का नाम दे दिया वर्ड काउंट. देन आफ्टर इन फाइल इनपुट फॉर्मेट, हमने अभी बात किया था देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट्स, और यहाँ पे हमारे पास फाइल इनपुट एंड फाइल आउटपुट फॉर्मेट में हम डेटा ले रहे हैं और डेटा को स्टोर कर रहे हैं. सो डेटा विल बी टेकन फ्रॉम सम फाइल and it will be stored in some file, right? So that is what the input and output is, but here you require to store the path of that particular file. So now I don't want to give path, so the argument 0 and 1 is there. So through command prompt we will provide the path. Clear? So command prompt से हम path को यहाँ पे provide करेंगे. ठीक है, तो ये हमने दोनों statement क्यों लिखे हैं, because we want input and output file. Now why you want this input and output file? For this job. ये जो जॉब है ना, जो जॉब का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, ये जॉब को कंप्लीट करने के लिए वी रिक्वायर्ड इनपुट एंड आउटपुट. तो सेट इनपुट पाथ, सेट आउटपुट पाथ फॉर दिस जॉब एंड दिस इज द पाथ. इसको दो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं आप. पाथ का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसको यहाँ पे लिखो, या फिर यहीं पे पाथ का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो. तो यहाँ पे 2 लाइन हमने बचा ली है और ये हमने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, then after you require to give the mapper class and reducer class data also, class file name also. ठीक है, तो यहाँ पे set mapper class कहाँ कर रहे हैं, सब कुछ जॉब में करेंगे और उसके बाद जॉब को सबमिट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैपर क्लास क्या है, तो वर्ड मैपर करके क्लास है, और वैसे ही सम रिड्यूसर करके क्लास है, उसको हमने यहाँ पे दिया है. ठीक है, the most important one is set map output key class and set map output value class. ठीक है, तो output key value क्या होगा वो, तो ये मैप का आउटपुट है. ठीक है, और ये आपका रिकॉर्ड रीडर का आउटपुट हो. ठीक है, दोनों में ही केस में हमारे पास पहला जो डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा और दूसरा डेटा जो होगा वो आपका इंटीजर फॉर्मेट में होगा. ठीक है, after that what you will do, you will submit the job. Now after submitting the job, ये statement पे automatically Hadoop cluster will start this mapper class. उसको कैसे पता चला कौन सा मैपर होगा, तो उसको पता चलता है यहाँ से सेट मैपर, ये रहा. ठीक है, उससे पता चलता है कि मैप यहाँ से करना है. ठीक है, तो ये मैपर क्लास का डेटा है. मैपर क्लास में we require to extend this class mapper class which is there in the Hadoop MapReduce classes. Okay, extend किया तो class ही होगा of course, and with the generic data types. तो यहाँ पे generic data type कौन सी है, long writable, text, integer writable. Now this can be anything, this is based on your problem statement. तो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मुझे ये जो 2 चीज है वो है ऑफसेट एंड वैल्यू दैट आई रिक्वायर्ड बिकॉज आई एम रीडिंग फाइल, एंड दिस वन इज योर इनपुट आउटपुट की वैल्यू. तो की वैल्यू तो हमें की जो है वो टेक्स्ट में चाहिए और वैल्यू हमें इंटीजर में चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट और इंटीजर राइटेबल लिखा है. नाउ दिस मैपर एक्सटेंड मैपर is having here we have written one function that is map function, और वो map function में हमारे पास सेम ये long writable की और text की वैल्यू है. ठीक है, तो यहाँ पे की और वैल्यू offset and value आ गया, and context is nothing but for the stream data. ठीक है, तो जहाँ पे stream में आपको write करना है उसके लिए ये object है. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने देखा था, देखो वहां पे मैंने टोकनाइजर का यूज किया था और यहाँ पे लाइन स्प्लिट का यूज किया है. सो दैट वे यू कैन यूज एनीथिंग बेस्ड, यू हैव ऑलरेडी जावा नॉलेज, तो यू कैन
दिस इज व्हाट द पार्ट यू रिक्वायर टू राइट फॉर द मैप. ऊपर नीचे का तो सब सेम ही होगा. ये आपका कोड है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से बदलेगा. जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा उसके हिसाब से यू रिक्वायर टू राइट दिस. क्लियर एवरीवन? Okay, so yeah, this is nothing but it will split the line in the all the possible way. So if it is space in between two words तो भी वो split कर लेगा. Carriage written है तो भी वो split कर लेगा. That way it will completely convert the line in the words. Okay, now suppose for example this is the line in the file. This is my input file where 1 2 3 4 5 lines are there. Then what happened? Record reader. Now again go for the concept. Input format के बाद आता है record reader. Record reader will read this file first. Offset and value. उसको वो किस में कन्वर्ट करेगा? वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा और हर वर्ड के साथ 1 जो है वो ऐड हो जाएगा. तो ये कितना वर्ड हो गया? 2 वर्ड. ठीक है. वापस रिकॉर्ड रीडर दूसरा लाइन लेगा, वापस मैपर में जाएगा. वापस मैपर में उसने क्या किया? इट विल स्प्लिट द लाइन. अगेन यू विल गेट 2 वर्ड्स. हर वर्ड इंपोर्ट के बाद 1, फिर इसके बाद 1 आ जाएगा. देन थर्ड, देन फिफ्थ, फोर्थ, देन फिफ्थ. ये पूरा जो फॉर लूप है वो 4 बार चलेगा. समझ आया इंटरनली कैसे करेगा वो? हर बार वो लाइन की वैल्यू ले रहा है. बेस्ड ऑन दिस ऑफसेट एंड वैल्यू इट इज टेकिंग द वैल्यू क्योंकि डेटा इसके अंदर है. ठीक है. और उसके बाद वो उसको स्प्लिट करेगा और उसको राइट करेगा. नाउ कहाँ राइट करेगा ये? इन सम इंटरमीडिएट डिस्क स्पेस. ओके, इंटरमीडिएट. वो फाइनल फाइल में राइट नहीं कर रहे हैं. फाइनल फाइल में तो वो रिड्यूसर में राइट करेगा. तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कोई स्टोरेज है, वहां पे वो राइट कर रहा है डेटा. एंड द सेम डेटा विल बी यूज्ड बाय द रिड्यूसर अगेन. ओके, जब ये राइट होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली वो डेटा शफल, शॉर्ट, कंबाइनर, पार्टीशनिंग, एवरीथिंग विल डन. ओके, और उसके बाद वो डेटा रिड्यूसर के पास जाएगा. जब तक सारे मैपर, यहाँ पे देख रहे हो आप, सारे मैपर अपना काम खत्म नहीं करते तब तक रिड्यूसर का काम शुरू नहीं होगा. क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है. सो दैट वे इट विल वर्क. नाउ इट वी विल गो फॉर रिड्यूसर टास्क. रिड्यूसर में क्या हो रहा है? सो की वैल्यू पेयर है हमारे पास, आउटपुट की वैल्यू पेयर एंड इनपुट की वैल्यू पेयर. इनपुट कौन सा? जो मैप ने इनपुट दिया, आउटपुट दिया, वो इसका इनपुट है. और वो कहाँ से रीड होगा? ऑटोमेटिकली ये स्पेस जो है वहां से रीड होगा. एंड ऑटोमेटिकली आफ्टर मैपर इट विल स्टार्ट रिड्यूसर. आपको सिर्फ यहाँ पे देना है कि वो रिड्यूसर का क्लास कौन सा है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स डन बाय रिड्यूसर और डन बाय द क्लस्टर इटसेल्फ. क्लियर? देन आफ्टर वन बाय वन पहला, अब आपके पास यहाँ पे की वैल्यू कैसे होगा? तो की के बाद वैल्यू, सपोज अगेन वी विल टेक दिस पर्टिकुलर 5 लाइन्स. और इसका अगर हमने, इसका मैपर का आउटपुट कैसे होगा? तो इंपोर्ट के बाजू में कितनी बार 1 होगा? ऐसे फॉर्म में डेटा होगा. और दूसरा क्या होगा? ये पूरा दूसरा वर्ड कॉमा 1, ये पूरा दूसरा वर्ड कॉमा 1, सबके साथ 1 1 1. ये डेटा है मेरे पास अभी, जो किसको मिल रहा है? रिड्यूसर को मिल रहा है. अब रिड्यूसर क्या करेगा? जितना भी लिस्ट है उसके पास, की कॉमा इटरेबल इंट राइटेबल वैल्यूज. तो ये जो इंट राइटेबल वैल्यूज है उसके पास मल्टीपल लिस्ट है पूरा. ये वो लिस्ट को इटरेट करके उसकी वैल्यू को वो प्लस करता जाएगा और इसको क्या कर देगा? 5 में कन्वर्ट कर देगा. तो यू विल गेट की कॉमा 5. कहाँ पे? फाइनल आउटपुट फाइल, विच एवर फाइल यू हैव डिसाइडेड टू टेक एज आउटपुट फाइल. ठीक है, जो फाइल आप कमांड प्रॉम्प्ट के साथ दोगे ये आर्ग्यूमेंट 1 में. क्लियर हुआ सबको? 2 आर्ग्यूमेंट देने हैं हमको, 0 और 1. 0 मीन्स इनपुट, 1 मीन्स आउटपुट. क्लियर हुआ सबको ये? आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं. यहाँ पे भी लिख सकते हो कौन सी फाइल आपको देनी है. ठीक है, और वहां से भी कमांड लाइन से भी हो सकते हैं. अच्छा, एनी क्वेश्चन इन दिस स्टूडेंट्स?
कुछ नहीं समझ में आया ऐसा है? इंटरप्टेड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन क्यों है वो सबको पता है आई थिंक. एक्सटेंड क्या करता है यू नो. हाँ, सुपर क्लास. ठीक है. Exceptions are for what? IO exception for files, interrupted exception for context.write. When you are doing some serially reading writing, उस टाइम पे ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन जो है वो कंपलसरी हो जाता है. ठीक है. So now we will perform this practical in Hadoop environment. Thank you, everyone.